ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد یاد حضور کی قسم غفلت عیش ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ستم خوب چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج دھول-شاہ پہلوان انگلش میڈیم اسکول ادونی میں وقت کی آواز ادونی چینل کی جانب سے 2025 کے کیلنڈر کی رسم اجرا تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کے طور پر دھول-شاہ پہلوان مسجد کمیٹی کے صدر و اراکین محمد ذکریہ صاحب، عبدالقادر صاحب، رشید پٹیل صاحب و دیگر اراکین شریک رہے۔ حفاظ اکرام میں حافظ منور صاحب، حافظ اسماعیل قادری صاحب، حافظ سرمد صاحب کے علاوہ MS عبدالقادر صاحب اور TJ سراج الحق صاحب وغیرہ موجود رہے۔ جلسے کا آغاز علیشہ تبسم خطاطی کی طالبہ کی قراءت کلام پاک اور خواجہ بانو کی بہترین آواز والی نعت شریف سے ہوا۔ جلسے کی نظامت جرنلسٹ و ایڈیٹر وقت کی آواز چینل ادونی محمد ذاکر نے انجام دی۔ اس موقع پر تمام مہمانان نے دھول-شاہ پہلوان سینٹر میں چلائے جا رہے اردو خطاطی تربیتی سینٹر کا معائنہ کیا اور تربیت حاصل کرنے والے طلباء کی جانب سے تیار کیے گئے خطاطی کے نمونوں کی خوب تعریف کی۔ خطاطی کی تربیت دینے والے استاد محمد ذاکر کی خدمات کو خوب سراہا۔ بعد ازاں تمام مہمانان نے اپنے اپنے انداز میں کیلنڈر کی افتتاح کو لے کر بیان دیا، اردو زبان کی فروغ کے لیے جدوجہد کرنے اور طلباء کو اردو زبان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی زور دیا۔ قبل از جرنلسٹ محمد ذاکر نے بتایا کہ وقت کی آواز کیلنڈر کے افتتاح کا یہ دوسرا سال ہے اور تقریباً 15 سال سے اپنے صحافتی خدمات محمد ذاکر انجام دیتے ہوئے اردو زبان کو فروغ دینے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں وقت کی آواز کیلنڈر کی رسم اجرا مختلف جگہوں پر کیلنڈر کے ساتھ تصاویر لیتے ہوئے بھی عمل میں لائی گئی۔ مدرسہ قبلہ حسینی ادونی میں مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب کے ہاتھوں میں عمل میں لائی گئی۔ وویکانندا جونیئر کالج کرسپونڈنٹ پروین صاحبہ کے ہاتھوں بھی عمل میں لائی گئی۔ دیگر اسکولز اور مختلف مقامات پر بھی تصاویر کے ذریعے اجرا عمل میں آئی۔ واضح ہو کہ اس کیلنڈر کی افتتاح کا مقصد اردو زبان کو فروغ دینا ہے۔ کیلنڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شہر کی تاریخی مساجد اور درگاہ کی تصاویر کے علاوہ ہر صفحے پر بہترین اقوال پڑھنے کو ملیں گے۔ آپ جناب بخوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً 1 سال کے عرصے سے یہاں پر اردو خطاطی کلاسز جاری ہیں اور اردو زبان کے فروغ اور اردو زبان کی ترقی کے لیے یہاں پر الحمدللہ ہمارے جناب ذاکر صاحب جو ہے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں اور یہاں پر بہت سے محلوں سے آ کر جو ہے طلباء و طالبات جو ہے خطاطی کورس میں داخلہ لے کر اردو زبان سیکھ بھی رہے ہیں اور خطاطی جو ہے الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اسی بات کو لے کر جو ہے اس سال جو آنے والا سال 2025 ہے، 2025 کا جو ہے اردو کیلنڈر جو ہے وقت کی آواز کی جانب سے جو ہے شائع کیا گیا ہے۔ اس کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ اردو زبان کو فروغ دیا جائے، اردو زبان کو عام سے عام کیا جائے اور اسی مقصد کے تحت جو ہے اردو زبان اس وقت ترقی ہو سکتی ہے، اس وقت جو ہے فروغ پا سکتی ہے جب ہم اس زبان کو خود سیکھیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں گے۔
जब हम इस ज़बान से दिलचस्पी रखेंगे, शौक़ पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को ये ज़बान सिखाएंगे तो ये ज़बान जो है आगे चलकर जो है तरक्की ज़रूर पाएगा। ये ज़बान किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है। इस ज़बान को जो है मज़हब की तरफ जो है मंसूब करके जो है इसको मुसलमानों की ज़बान करार दिया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि तारीख़ आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये ज़बान जो है कदीम ज़माने से जो है हुकूमती ज़बान रही। इस ज़बान को जो है हम खुद जो है इस ज़बान से जो है दूर होते गए और इस ज़बान को जो है हम पीछे छोड़ दिए। तो हम कोशिश करें कि हम खुद भी जो है इस उर्दू ज़बान से जो है दिलचस्पी रखें, खुद भी सीखें और अपने जो है बच्चों को भी सिखाएं। मैं जनाब ज़ाकिर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और तकरीबन स्कूल्स में जाकर भी जो है उर्दू खत्ताती और उर्दू राइटिंग जो है वो सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है इनकी खिदमत को कबूल करे और इन्हें जो है रोज़ अफ़ज़ल जो है तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ज़रूरी है, लेकिन उसे हमें इस्तेमाल करते नहीं। इस्तेमाल ज़रूरी की चीज़ इस्तेमाल करें तो उसको फायदा में आता। इतना कोशिश करे तो भी उनको तसल्ली देती। एक काम कहने का एक मकसद होता। हमारे मदरसे में भी ऐसा हमें उर्दू पढ़ाती, तो पढ़ने पर हमें भी खुद को बात करना अच्छी बात है। ये तो जरूरी है, उर्दू बोले, इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, बड़ी जरूरी है। वो हिसाब से हमें इनको मौका दिए, वो मौके में भरपूर हमारी मस्जिद का नाम सामने आके उर्दू इधर भी सिखाने देने का एक हम पब्लिक में वॉइस निकल गया, वो भी हमारी बहुत बड़ी खुशी। और कंप्यूटर्स बोले, कंप्यूटर्स भी जरूर दी गई। गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए, उन्हें भी दे दे। हमारे कहने हैं सब कंप्यूटर रखते, अभी होना रहा तो बात करके अभी उसे कंप्यूटर सेक्शन पे एक रूम भी सेपरेट करके देने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। हर साल करने की तमन्ना से ये साल भी उस हिसाब से इस मुहिम को चलाने वाले रिपोर्टर जाकिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन आज उर्दू डेवलपमेंट की बात भी की गई है। मैं कई स्कूलों के करस्पॉन्डेंट जैसे किडीज, नारायणा, अक्षरसी सब लोगों से बात किया कि आप तो उर्दू डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी उर्दू की बात ही नहीं करते। हम फोर्स करके बोलने के बाद भी नहीं, हमारे बच्चों को उर्दू मत पढ़ा, नौकरियाँ नहीं आती, ऐसा बोलते हैं। अक्सर मुसलमान उर्दू ज़ुबान की दावेदारी करते हैं कि उर्दू हमारी है, लेकिन उर्दू के ख़ास करके दुश्मन मुसलमान ही है। 99% ये मेरा रिपोर्ट है, ऑल इंडिया का रिपोर्ट है। 99% मुसलमानों को उर्दू ना लिखने आता ना पढ़ने आता। यहाँ तक कि मस्जिद के इमामों को भी उर्दू नहीं आती कि वो अंग्रेजी में उर्दू लिखने की तकरीर करते हैं। लेकिन ऐसी हालात है, इस उर्दू की ये खस्ता हालत लाने में सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार है। अपने बच्चों को उर्दू अकाडमिक तौर पर पढ़ाना चाहिए उनको, लेकिन उन मदरसों में इधर उधर उर्दू पढ़ाने से कोई मान्य नहीं रखती। उनके सर्टिफिकेट में एज ए लैंग्वेज उर्दू का होना बहुत सख्त ज़रूरत है। अक्सर हम लोग जहाँ पर भी कट्टे पे 4-5 मुसलमान बैठ के इस्लाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो मुताला करके नहीं आते, सिर्फ सुनी सुनी बातों पर इस्लाम के ऊपर बहस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों से आज के मीडिया के ताल्लुक से मुस्लिम भाइयों को और बहनों को इस बात की गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को अकाडमिक तौर पर स्कूलों में सेकेंड लैंग्वेज के तहत या फर्स्ट लैंग्वेज के तहत उर्दू पढ़ाए।
मैं इस बात को अपना सजेशन समझते हुए इस मौका देने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस नौजवान मोहल्ले के साथियों को मेरा सलाम और मासूम बच्चों को भी मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज का ये प्रोग्राम वक्त की आवाज़ एक यूट्यूब चैनल की वजह से एक कैलेंडर शाया किया जा रहा है, तो इसी मौके पर प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी को इसके बारे में इल्म है। इसी मेरा ये कहना है कि इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके इनकी रोज़ाना की खबरें को हम देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे इल्म में बहुत सारे मालूमात भी हो जाएंगी, और जो हालात शहर भर में हो रहे हैं या दीगर शहर में हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों को हम इस चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। क्योंकि जाकिर साहब ने बहुत सारी मेहनत की है कि इस चैनल के बारे में लाने में बहुत कोशिश की, और उनकी तारीफ तो हमें उनके सामने करना क्या है, उनके पीछे भी करते हैं, सामने भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी उर्दू को निखारा है यहाँ पर। तो जब पहली मरतबा हमें खत्ताती का यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में हमसे मशवरा किया गया, तो हम मुतवलियात इकराम ने यहाँ पर बैठ कर एक मशवरे में तय किया कि यहाँ पर एक सेंटर कायम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर के ज़रिए जो बच्चों ने खत्ताती जो लिखकर जो बताए हैं मॉडल्स, वो बखूबी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। हमें देखकर ये खुशी हो रही है कि इंशाअल्लाह आगे भी इन्हें और जो भी इन्हें ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करना है तो इंशाअल्लाह हम मुतवलियात इकराम और कमेटी के ज़रिए मशवरा कर इंशाअल्लाह इनकी और चीज़ें फराहम कर ये इंस्टीट्यूट को इंशाअल्लाह और आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो हजरात सभी हजरात जो बैठे हैं, जो भी हजरात अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इससे बहुत सारे मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुझे जो बात करने का जो मौका दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि आज की इस तकरीब का इनेकाद वक्त की आवाज़ का कैलेंडर की इफ्तिताह के लिए यहाँ पर हम सारे लोग मौजूद हैं। तकरीबन हमारे जाकिर साहब का एक कैलेंडर पिछले साल भी आया था और इस साल भी इसकी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। तो जाकिर साहब का हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा ये फ़िक्र रहती है कि कौम के लिए उर्दू को आबाद करे, उर्दू को शाद करे। तो हमें भी चाहिए कि उनकी फ़िक्र के साथ हम सबको, हम सारों को मिलकर उर्दू की तरक्की के लिए, और जैसे अब हाफिज़ मुनव्वर हसन ने बताया कि उर्दू खालिस मुसलमानों की ज़बान नहीं, सारे हिंदुस्तान की ज़बान थी। इसी तरह से उर्दू को हमने पीछे छोड़ दिया। उर्दू में आप देखेंगे कि सारी सीरत जो इस्लाम के हैं, सीरत तय्यबा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत भी उर्दू ही में लिखकर है। लेकिन आज हमने उर्दू को छोड़कर खाली अंग्रेज़ी कल्चर के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि उर्दू को पढ़ें और सीखें, और उर्दू ही में इस्लाम के बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर शरीयत के जो चीज़ें हैं वो सभी उर्दू ही में है। तो मैं तहे दिल से जाकिर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हर वक्त उर्दू के लिए मेहनतें करते हैं और अपने जहन में गौर व फिक्र करते हैं कि उर्दू को कैसे तरक्की पे लाएं, उर्दू को कैसे तरक्की पे लाएं। और बच्चों को खुद ही जाकर बोलते हैं कि आइए आप उर्दू सीखिए। उनका जज्बा तो देखिए, दीन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब जब होंगे आपका भी साथ होगा, आपका भी साथ होगा। जब आप भी साथ देंगे तो कामयाबी जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेंगे इंशाअल्लाह। मैं जाकिर साहब को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि जो आप काबिश मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। अभी आप इस साथ फरमा रहे थे कि उर्दू की तरक्की के लिए सबका साथ होना ज़रूरी है। मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए अब कारवां बढ़ता। बिल्कुल इसी तरह अगर एक का साथ एक देते रहें तो कुछ बड़ी बात नहीं कि जो है मंजिल तक पहुंच जाए। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, उर्दू हमारे घरों में बोली जाने वाली ज़ुबान है,
محلے میں اور گاؤں میں اردو ہی بول سکتے ہیں، اور اردو سے ہی ہم کنارہ کشی کریں گے تو اردو کو جو ہے کل پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ محترم ناظرین و سامعین، فروغ اردو کے سلسلے میں ایک کیلنڈر وقت کی آواز ایک اہم کردار ہے، ایک اہم رول ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں کیلنڈر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس طریقے سے ذکر فرما کر اسلام میں کیلنڈر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ خاص طور پر وقت کی آواز کے ایڈیٹر جناب محترم ذاکر حسین صاحب کی ایک فروغ اردو زبان کو عام کرنے کے سلسلے میں ایک اچھا قدم ہے، ایک اچھی سعی اور اس کی کوشش ہے۔ اس کیلنڈر کی خصوصیات میں یہ بات دیکھنے میں آئے گی کہ اس میں تاریخی مقامات کے عکوس اور ان کے تصاویر کو آویزاں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے، اس طریقے کی حکمت آمیز باتیں بھی ہر صفحے پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس کوشش کو قبولیت عطا فرمائے اور اس کیلنڈر سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وقت کی آواز کے جانب سے جو کیلنڈر ریلیز ہوا ہے ہمارے کالج میں، اور اس میں یہ اسلامک کیلنڈر ہے اور اس میں بہت سارے نصیحت کے کوٹس بھی لکھے ہیں، اور یہ کیلنڈر آپ سبھی کو ہم پہنچانے کے واسطے انشاءاللہ کوشش کریں گے، جو بھی ہمارے کالج میں پڑھ رہے ہیں اسٹوڈینٹس، ان کے پیرنٹس، ان کو پہنچانے کے لیے۔ اور نیا سال کی مبارک ہمارے کالج کی طرف سے اور یہ وقت کی آواز کی طرف سے میں نئے سال کی مبارکباد دے رہی ہوں آپ کو۔ شکریہ۔